Who has had 14 captains in the 18 seasons of IPL cricket, not having stability at the top has that impacted Delhi and how, in that sense, you are giving confidence to Akshar to be stable at the top. But the question to you is, there's a war happening in West Asia, as we know the impact of it on the Pakistan Super League as well, and we know what happened last night. In view of that, are there any austerity measures that the franchise is going to take? That question you will answer. I think impact on whatever is happening, war, at this stage, we'll look into it. What we can take it. But when it comes to 14 captains, definitely me and Hemant very clear about Umpigu. That's why we are continuing to carry on the Akshar for first year and second year. So stability will Akshar, if I'm not wrong, 8 years. So he knows the culture, he knows it क्या चाहते हैं, he knows what the people want. And if I'm not wrong, मैं और मैंने पूरा बात किया तो I think he was very happy for Indian team at times. It's always good to continue. So with this, what I can't really speak of what's happened in the past, because I haven't been a part of this environment. I've just been with them since last year. And it was a conscious call, as Velu mentioned, that look at somebody who's been with us, understands the people, understands the fans, understands the ground, the environment, the management, and it was quite straightforward for us that Akhtar was the man. And hence, we also again tried to stick with him. I thought we had a very, very good season. Maybe we didn't finish off the way we would have liked, but I thought we had a great start, and I thought it speaks of a young leader that you see in him, and he's been around for a long time. And also a long-standing Delhi Capitals boy, no better person to lead the center. And here again, he's as leader for us come season. ऐसे कोई भी आंसर कर सकता है। कुछ आपने मेंशन के बारे में बात करी, तो इज इट फिटनेस इशू विद और वर्कलोड इशू? आपने बोला एचसीओ एनओसी मिला है, सो I mean, moving forward, you need to situation a lot better because you पता ही है कि आपको आईपीएल में आना है और ये स्केड्यूल है, so इसे आप बोला नहीं वो आ रहे वेटिंग फॉर उनको ये करे था वर्कलोड एट द सेम टाइम फिटनेस का वो पूरा आपको मॉनिटर कर रहे हैं जैसे अपडेट आएगा अपडेट कर We're in constant touch with him. We have updates as in he's been bowling. He's had a bowl a few days back. But unless they take it Australia, signs of on him saying he's fit to play, there's very little that franchise can do. एक कैप्टन के लिए भी सवाल था अक्षर एज इंडियन टीम वाइस कैप्टन 2027 के इम्पैक्ट विल लॉक इन है, बट आपके क्या व्यूज हैं एज एन इंडियन टीम वाइस कैप्टन? बिकॉज़ मिक्स्ड व्यूज हैं प्लेयर्स के ऑन दिस रूल। मैं तो मतलब मुझे तो ये रूल मुझे अच्छा नहीं लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि बिकॉज ऑफ आई एम ऑलराउंडर एंड कि बैटिंग और बॉलिंग में पहले ऐसा होता था कि ऑलराउंडर पिक करते थे। बिकॉज ऑफ दिस रूल आई थिंक every team management go with या पर्टिकुलर बैट्समैन या पर्टिकुलर बॉलर के लिए जाते हैं कि यार हमें ऑलराउंडर किया तो सो आई थिंक उसकी वजह से मतलब मुझे एज मैं भी ऑलराउंडर हूँ तो मुझे वो पसंद नहीं था, बट एट द सेम टाइम हमारे हाथ में जो है वो रूल्स है तो है उसको हमें फॉलो करना है। बट पर्सनल व्यू में आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे वो रूल पसंद है। अक्सर इसी का कंटिन्यूशन है, जैसे कि आपकी बैटिंग के बारे में बहुत बात होती है आपके में आपने बैटिंग में इतना अच्छा किया है, लास्ट ईयर आपने इतनी बॉलिंग नहीं डाली, क्या इम्पैक्ट उनकी वजह से ज्यादा था क्या? नहीं इम्पैक्ट वजह की वजह से नहीं था, वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी उससे पहले का चैंपियंस ट्रॉफी में मेरा स्पिनिंग फिंगर कट हो गया था, तो उसकी वजह से मैं जब वापस बॉलिंग कंटिन्यू कर रहा था तो वो अगेन बॉल की सीम की वजह से वो और कट होते जा रहा था एंड वो थोड़ा डीप कट हो गया था, तो उसकी वजह से मैं वो प्रेशर नहीं दे पा रहा था बॉल पे, वो रोटेशन
इनकम डाल रहा था, जितना हो सके उतना सोच रहा था कि अगर जरूरत है तो डालूंगा, अगर नहीं तो यू नो कि मैं अपनी फिंगर सेव कर सकता हूँ। एंड बट अगर फिर आफ्टर 7 महीने आई थिंक मोस्ट ऑफ द ईयर में मैंने वो जब ये मेरी फिंगर हो गई अच्छी, उसके बाद मैंने सबसे Maybe sir, just for you, like अभी पिछले 1-2 दिन में we have seen how CSK rejected and what happened. The fan was like, the MI or the Sunrisers had come. Chinnaswamy, how it was for RCB. Do you think Delhi Capitals has like failed to do that? Why bought the by a plan and franchise? It's also like 18 years now. Like 18 years is a long time. उस तरीके का नहीं हो पाया. And what do you see? कि क्या effort, lack of effort now from you, आप लोगों के side से किस तरीके का है? And you have been since Daredevils के time से आप हो, and you are the right person I think to answer this. Why do you think that there is a lack of? ऐसी कुछ नहीं, एक बार जीतने दो, हम भी लोग ये एक बार जीतने दो। वही है, RCB for 12 साल नहीं जीता, Sunrisers is good, but still there is like really something is lacking and players. एक बार जीतने दो, आप भी देखेंगे, जीतने दो। आरएसआर बोला, सीएसके बोला, एमआई बोला, सब लोग जीता है, दो बार जीता। हम तो एक बार जीतने दो, आप देखेंगे दिल्ली वाले। अच्छा भाई, वर्ल्ड कप में हमने देखा कि टीवी और एक खुला फैक्टर था कि टीम हर शहर में मंदिर जा रही थी, तो टीवी में भी क्या वो अच्छा तो वही टीवी जिस शहर में जाएगी मंदिर जाए ताकि ट्रॉफी एक बार आ जाए। ट्रिपल टू बहुत अच्छा है, जो ज्यादा है तो सबके लिए अच्छा है। आप भी आप कोई बोलूँगा नहीं, वो ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ था, बट ऑब्वियसली आप अगर किसी को कुछ अच्छा करते हुए देखते हो तो हम भी सीखते हैं क्या नहीं तो वो है। तो एट द सेम टाइम मंदिर जाना तो कोई बुरा नहीं है, तो सब लोग वही सोच के जाते थे कि चलो जाते हैं। एंड अगर पर्टिकुलर मेरी पर्सनली बात करें तो मैं मंदिर जाता था क्योंकि मैं वही मंदिर जाता था कि जहाँ पे हम ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे नॉर्मली हम जा नहीं पाते, क्योंकि अगर टूर पे होते इधर होते तो हम जा नहीं पाते, लेकिन उसी शहर में तो टीम के साथ होता है तो सिक्योरिटी के साथ इजीली दर्शन होकर हम बाहर आ सकते हैं। पर्सनली जब जाएंगे तो उतना ऐसी भीड़ में हम पब्लिकली इतना बाहर जाके दर्शन नहीं कर पाते, तो वही रीजन होता था कि मैं जब जाता था। लेकिन उसके बाद सब लोग स्टार्ट हुए, मतलब ऑब्वियसली मैं अकेले, आप अगर जाते हो अकेले जाना तो 2-3 दोस्त को साथ में लेके जाते हो, तो उसके साथ ऐसे कोई टीम में ऐसा ही हो गया कि सबको पूछने लगे कि यार हम जा रहे हैं तो जाना, ऐसे करके फिर हम 5-6 लोग जाते थे। तो ऐसा कुछ मत और ऐसे कल्चर वल्चर कुछ नहीं है, जस्ट नॉर्मली मंदिर प्रे करने जाते थे एंड वापस आ जाते थे। बट ऐसा दिल्ली कैपिटल्स में जिसका मन होगा मैं प्रे करूंगा, मैं जैसा उनको और दर्शन करवा के आओ। बट अगर दिल्ली में कोई अच्छा मंदिर नहीं भाई, इसकी पता होनी चाहिए कि हाँ इसकी वजह से हाँ बस हम जाएंगे, मैं What's that one thing that since it won the T20 World Cup twice now in a couple of years, that one thing that you as the leader of the Delhi Capitals would want to instill into this team, so that this team also can get to the laurels that it wants to get to. The one thing that has made India be champions is that one winning habit, mentality, regime, duty that you would like to instill into this team. आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत डिफरेंट कल्चर है, कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट एंड इंडियन क्रिकेट इज डिफरेंट टोटली, बिकॉज इन फ्रेंचाइजी कि सब अलग अलग कंट्री से आते हैं और खेलते हैं, और इंडियन टीम में सबको पता है कि हमें इसी तरह खेलना है, ऐसे ही खेलना है, तो इधर बहुत हार्ड हो जाता है। लेकिन एज अ कैप्टन अगर मुझे एक चीज लानी है तो मैं हम बात करते हैं ना इंटेंट, हम इसी तरह खेलेंगे, बट आई थिंक विनिंग मेंटालिटी इंडियन टीम की यही है कि दे आर फ्लेक्सिबल इनफ कि in any situation, any particular role, they adapt quickly and also I think in franchise cricket also, मैं कैप्टन हूँ, मैं ये टीम में ये लाऊंगा कि हम सिर्फ क्रिकेट एक ही तरह का नहीं खेल सकते, डिफरेंट वेन्यू होते हैं, डिफरेंट पिच होती है, तो हमें वो अडेप्ट करना होता है। तो हम फ्लेक्सिबल
फ्लेक्सिबल इनफ रहेंगे कि हमें जो कंडीशन मिल रही है उसके हिसाब से हम अपना गेम सेट करें और हम उसी तरह से खेलें। जैसे मैं इंडियन टीम की बात कर रहा था कि इंडियन टीम में वैसा रूल फिक्स है कि यार ओपनर ये है वो है। इन फ्रेंचाइजी क्या होता है कि जो अपनी टीम के लिए कंट्री के लिए ओपनिंग खेलता है उसको मिडल ऑर्डर कभी खेलना पड़ता है और ये खेलना पड़ता है, तो वो रोल भी एडजस्ट होते हैं, वो सब कुछ एडजस्ट होना करना पड़ता है। बट इंडियन टीम में जब सेट होता है तो वही मैं अगर हो सके तो वो लाना चाहूंगा कि फ्लेक्सिबल इनफ और आप कोई भी रोल के लिए रेडी रहो, कोई भी सिचुएशन के लिए रेडी रहो कि हम इसी तरह का क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम सिचुएशन वाइज डिफरेंट डिफरेंट तरह का क्रिकेट भी खेल सकते हैं। Yeah. First of all, congratulations on winning the World Cup. Actually, the one thing that you're most excited about this season, leading Delhi Capitals, the second is it's been a while, where you moved in a World Cup जीतने के बाद वो दो catches करने के बाद जब आप अपने ख्यालों में होते हो कि बैठे रहते हो लगता है हमारे मैं सेकंड क्वेश्चन का मतलब आपका फील्डिंग कोच जो है उन्होंने एक इंटरव्यू मुझे दिया था और उन्होंने कहा था मॉडर्न डे जॉन की नोट्स मैं आपने ये कह दिया मुझे याद कराते रहेंगे 10 बार से समझाएंगे। अरे यार कुछ फिर हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट आउट करना है तो मुझे भी तो करना पड़ेगा, तो हमारा पॉइंट है। आई थिंक जो कैच का बारे में बोला ना, मतलब मैं तब सोशल मीडिया में मतलब एक्टिव नहीं था कुछ, और लेकिन वो जो बात होगी ना मैं बैठा था ख्यालों में, बट वही यस वो मैं बाद में जब रील्स देख रहा था और जो दोस्त मुझे भेजते थे तब मुझे लग रहा था कि यार क्योंकि दैट मोमेंट आपको इतना रियलाइज नहीं होता है कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि मैं अपना पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहा होता हूँ तो तब नहीं पता था। लेकिन जब बाद में जब वीडियोस में देखा ना तब मैं मुझे लगा यार ये तो टफ था यार, मैंने ऐसे जाके पकड़ लिया, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट कैच क्रिकेट में बहुत टफ रहता है कि आप उल्टा भागते हो और वो उतना डिस्टेंस कवर करके कैच करना है। एंड उसके बाद उसी मैच में 2 मैच लगातार ऐसे कैच करना है ऐसे सिचुएशन में, तो या आई फील यार ग्रेटफुल भी और प्राउड फील करता हूँ कि यार ऐसी सिचुएशन में ऐसा कर किया है। एंड बट यही है कि आप जो प्रैक्टिस करते हो जो मेहनत करते हो वही आप जब ग्राउंड पे जाते हो तो उसका फल आपको वही मिलता है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स के लिए वेरी एक्साइटेड टीम के लिए ज्यादा एक्साइटेड ये कि जो लास्ट में जो गलतियां की है हमने एंड की जो ओपनिंग और फास्ट बॉलिंग में जो हमारे पास था, आई थिंक उसका सबका बैकअप और प्रॉपर ऑप्शन में जो चाहिए था हमें वो मिल गया है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि गुड स्पॉट के साथ सब टाइटल के लिए रस्ते, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके साथ इस ये वाला सीजन हम कैसे स्टार्ट करते हैं। एंड हमें जिस तरह का क्रिकेट खेलना है तो वो ये नई टीम कितनी एक्साइटेड है, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट देती है, क्योंकि मेरे आसपास के लोग और जो मेरे प्लेयर्स हैं वो कितना एक्साइटेड है, वो कितना अच्छा करने के लिए कि भाई हमें करना है, तो वो सब देख के मुझे और मजा आता है। और ये चाहते हैं कि आपके सब प्लेयर्स आपके सब प्लेयर्स की टीम के लिए अपना जो देना अपना हार्ड वर्क फोकस कितना रहेगी, तो वो मुझे ज़्यादा